Good morning everyone and I hope you are fine. So class तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे 46 पेज पर. सबसे पहला पैरा है A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 80 countries investigated. अब देखो यूनाइटेड नेशंस यानी जो यूएनओ है उसने एक सर्वे किया था कि वही किन किन देशों का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब है. तो उन्होंने देखा कि जो संसार के जो करीब 18 देश है उनका जो इन्वायरमेंट है उन देशों का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors deteriorating the future of human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion. Then that was the world population around the year 18th century, 1800, and by the year 1900 a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated 5.7 billion. Every 4 days the world population increased by 1 billion. अब देखो जो इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इसमें सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मानता हूँ कि वो पॉपुलेशन है. अगर मान लीजिए हमारे पास पॉपुलेशन कम होगी तो हमें कम संसाधनों की ज़रूरत होगी, कम इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होगी. ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनके लिए हमें हवा, पानी, खाना उन सब की व्यवस्था करनी होगी. उनके लिए घर भी चाहिए. अगर घर मान लीजिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो जाती है तो उनके लिए घर कहाँ से आएंगे, तो जंगलों को ही काटना पड़ेगा. अब देखो कई मिलियन साल लगे 1 बिलियन जनसंख्या होने में. ठीक है, और अकेले है ना 20वीं शताब्दी में 3.7 बिलियन लोग बढ़ गए हमारी दुनिया में. ठीक है. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स. अब देखो हेल्थ भी लोगों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आया, अब एजुकेशन में भी सुधार आया है. Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in the numbers countries. And the rich get richer, and the poor beget children, and which condemns them to remain poor. More children does not more more workers, merely more people without work. It is not suggested that the human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. Perpetuation क्या होता है, लगातार होते रहना. ठीक है. The population अब देखोगे कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो बच्चे पैदा करते हैं. ठीक है, और जो बच्चे पैदा करते हैं तो वो इसका मतलब क्या होता है, वो भी गरीबी रहते हैं. इसका मतलब क्या, गरीबी वो बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम का सबसे मुश्किल जो सबसे ज़्यादा कारण है, सबसे बड़ा कारण है वो है पॉपुलेशन. ठीक है, और ज़्यादा लोगों का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लोगों का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा काम, ज़्यादा लोगों का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग बिना काम के. ठीक है. The population of India is estimated to be 920 million today, and more than the entire populations of Africa and South America are put together. No familiar with the country's conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. देखो इसमें ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है उसको हमें ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए. अब देखो भारत में अकेले में इतने व्यक्ति हैं जितने पूरे अफ्रीका के लोग मिला लो और साउथ अमेरिका के लोग मिला लो, उनको भी साथ में रख लेना तो भी भारत के लोग ज़्यादा ही पढ़ते हैं उनसे. ठीक है. एंड फॉर द
For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecologic view. So seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of the parts. अब देखो, जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सभी के सभी मतलब ये इसका मतलब सिर्फ मौत से नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का भी पासपोर्ट है। ठीक है, अगर हम इसका आज ख्याल रखेंगे तो जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये अच्छा होगा। कि आप ये चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन हमको कोसे कि हमारे जो पूर्वज है वो इस पूरी पृथ्वी को ख़राब कर कर चले गए। ठीक है, आप ये ऐसा तो नहीं चाहेंगे, बिल्कुल भी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा। So industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Azure Woodland, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. अब देखो, अगर मान लीजिए सभी के सभी लोग जो चेयरमैन हैं ड्यू पॉइंट मिस्टर ईगर की तरह बन जाए, यानी इंडस्ट्री तो हो लेकिन फिर भी वो किसको प्रेफरेंस दे, किसकी परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस दे, एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब ना हो, यानी हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बचा रहे और इंडस्ट्री भी फलती फूलती रहे। क्योंकि कई बार ये होता है कि यार जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि फैक्ट्रीज लगा लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज लगा लेते हैं तो वो एनवायरनमेंट की कोई परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। एंड ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर कौन थी? वो प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड की। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप none has passed so decisively into the current coin of English uses as her fallacious words. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our चिल्ड्रन। अब देखो, मार्गरेट थैचर जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने एक बात कही थी कि यहाँ पर जो पृथ्वी है ना हमारी, उस पर किसी का कोई एक अधिकार नहीं है। ठीक है, कि भाई ये किसी की हो, कोई अपना मतलब ये मान लो, बस उसको यूज़ करने के लिए मिली है, लाइफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे हम उसको, और उसको ऐसे कैसे उसकी रक्षा करके उसको ऐसे कैसे आने वाली जनरेशन को दे देंगे। लेकिन सचमुच ऐसा हो रहा है? अब सोच के देखो, सचमुच ऐसा हो रहा है क्या? अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या कहेगी? उनके तो बेचारों के लिए पेड़ पौधे, हवा, पानी, यही तो एनवायरनमेंट है। पेड़ पौधे, हवा, पानी यही ख़राब हो जाएंगे, धरती ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी तो क्या होगा कि लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। और जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन है वो कहते हैं कि हमने ये ना जो पृथ्वी है हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमने ये अपने बच्चों से उधार लिया है। कहने का मतलब ये है कि हमने अपने बच्चों से उधार ये इसलिए लिया है क्योंकि हमें उसको सुरक्षित रखना है और वापस उनको दे देना है, वरना वो हमें कोसेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, तो मेरा मतलब है कि हम उनसे प्यार करते हैं ना, तो इसका मतलब हमें उनका जो हमारी पृथ्वी है उसका ख्याल रखना चाहिए। तो क्लास आपने इस चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। ठीक है, ओनली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।